I've owned this bike for almost 2 years now. I've ridden it for 19,000 kilometers. Now I'll tell you exactly what all I've changed on the bike and how much it costed. I might forget some things क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, and I might not remember the exact cost of those parts, but I can give you a rough ballpark figure, and in the end I'll tell you exactly how much I've spent in 2 years, which is actually quite a bit. As you guys know from my videos. Now when you get a used bike, the absolute first thing that you should do with that bike is change all the fluids. The brake fluids, the coolant, the oil. So I've changed the brake fluid once or twice till now. आगे DOT 5.1 डाला हुआ है. So this costed 600 rupees for the bottle. Rear में भी वही है. So 600 में वो दोनों brake fluid का. I'm running engine ice coolant in this, which costed 1800 bucks. लेकिन वो आई थिंक 2 लीटर का ऐसा कुछ तो आता है. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वांटिटी, बट उसमें 2 बार तुम्हारा कूलेंट हो सकता है. सो इसका कूलेंट मैंने 2 बार चेंज किया. सो दैट कॉस्टेड 1800 bucks. I've changed the engine oil maybe 5-6 times now. I've tried Liqui-Moly and Motul, both of them fully synthetic oils. Currently I have Motul in there 10W50. So अभी तक जितने भी engine oil changes हुए हैं उसको तुम जोड़ सकते हो up to 10,000 I guess. I've changed the visor. This is an FK Racing visor from Amazon. This costed 3,000 rupees. I've changed the alloy wheel क्योंकि मेरा वो जूना वाला alloy bend हो गया था कोई तो खड्डे में जाके. So that was 7,000 rupees. I've changed the front suspension fluid multiple times. I think 4 से 5 बार कर दिया रहेगा अभी तक. उसका cost आप 8,000 जितना जोड़ सकते हो. I've also changed the oil seal multiple times. So that's included in that 8,000 rupee cost. I've changed this fork leg. ये सिल्वर पार्ट क्योंकि वो जूना वाला रस्ट हो गया था. दिस वॉज 3,700. आई हैव ऑल्सो चेंज द रोटर बिकॉज द ओल्डर ब्रेक रोटर हैड worn out. That was for 3,000 rupees. I've changed 2 or 3 brake pad sets till now. Right now I have EBC which costed 3,000 rupees. Before this I had 2 sets of Vesra which costed 1,000 or 1,200 rupees. Brake pads का आप 6-8 मिला लो just front का. I've added these aux lights, these HJJ mini drive lights. These were a part of a collaboration, so that didn't cost anything. I've added this mudguard piece which costed 67 rupees, but it's a very important piece क्योंकि ये मेरे पास लास्ट रेनी सीजन में नहीं था, और ये नहीं था उसकी वजह से रेडिएटर के अंदर बहुत सारा कीचड़ उड़ गया था. बिकॉज ऑफ विच आई ट्राइड क्लीनिंग इट. उसके फिन्स बेंड हो गए और फिर भी कीचड़ फंसा हुआ था. देन आई हैड टू चेंज द रेडिएटर एंड द रेडिएटर फैन व्हाइल आई वाज डूइंग द रीबिल्ड. सो दैट कॉस्टेड 5,000 bucks. भाई साहब सिर्फ फ्रंट में ही इतना सारा चेंज कर दिया है. नाउ कमिंग हियर आई हैव चेंज्ड दीस ग्रिप्स व्हिच कॉस्टेड आई थिंक 200 bucks. आई हैव चेंज्ड द लेफ्ट साइड क्लच लीवर क्योंकि एक बार बाइक गिर गई थी और वो इधर से टूट गया था ब्रेक ऑफ पॉइंट से. सो दैट वाज 200 or 300 bucks. मैंने इसका स्पीडोमीटर का जो कवर आता है वो भी चेंज किया था क्योंकि जूना वाला थोड़ा जूना दिख रहा था, तो ये कुछ 800 रुपये का था. आई हैव एडेड दीज ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स व्हिच वर आई गॉट दिस फ्रॉम Abu Dhabi. I don't remember how much these costed, but they're nice. I've added these Autolog tank grips. I think they were 1,800 or something like that. I've changed the fuel tank. That was one of the bigger issues I had with the bike. The fuel tank was rusted, the stock fuel tank. So the fuel tank costed 3,000 bucks. And coming down here, of course, the engine rebuild. So I've changed the head and the block piston. The block piston was for 18,000 rupees and the head was for 6,000 rupees, and gaskets और इधर उधर की छोटी मोटी चीज़ें मिला के I think it added up to 30-35,000 rupees. Then coming here, I've changed the monoshock recently. This was 5,000 rupees, and obviously over here we have the legendary Kulapovich exhaust which costed I think 1,500 rupees. This is a replica KTM exhaust. मेरे को लगा था ओरिजिनल है बट ओरिजिनल निकला नहीं. फिर रेयर में मैं वेस्रा ब्रेक पैड्स यूज़ कर रहा हूँ तो ये कुछ 800-900 के थे. दिस टेल टाइडी ओवर हियर कॉस्टेड 800 rupees एंड दिस बाइक डिड नॉट हैव ओरिजिनल KTM इंडिकेटर्स. सो ये दोनों इंडिकेटर मैंने ओरिजिनल डाले हैं विच वर आई थिंक 500 ईच. कमिंग टू दिस साइड आई हैव चेंज द चेन स्प्रॉकेट वंस which was I think roughly 3,000 rupees. and of course इधर जो एयर फिल्टर वगैरह आता है वो भी हर एक सर्विस में चेंज हुआ ही है. स्पार्क प्लग्स चेंज हुए हैं, फ्यूल फिल्टर चेंज हुआ है. add all of that up to 2,000 or 3,000 rupees. over here I had to change the catalytic converter. KTM वाले बोल रहे थे कि 18,000 का आता है. मैंने कुर्ला से 1,500 में उठाया क्योंकि जो मेरा ओरिजिनल कैटालिटिक कन्वर्टर था उसमें इधर आगे लीक था गैस्केट में, सो जिसकी वजह से वो फट आवाज कर रहा था. बट फॉर्चुनेटली ये ओरिजिनल पार्ट निकला क्योंकि मैं आजाद को लेके गया था. मैंने बोला भाई तू मेरे साथ चल, तू मेरे को बता क्या सीन है. आई हैव हैड टू चेंज द शिफ्टर रॉड because I had given my bike at a shop in Aurangabad where they had dropped the bike. They didn't even tell me. कुछ दिनों बाद फिर वो शिफ्टर लटकने लगा, गिर गया. मेरे को कुछ ऑफ लग रहा था और ये जो फेयरिंग में क्रैक दिख रहा है वो भी वो लोग नहीं दिया है मेरे को. उसकी वजह से शिफ्टर रॉड चेंज करना पड़ा. आई थिंक शिफ्टर रॉड was 300-400 rupees. Now I'll come to the tires. Since I had obviously gotten it used, इसका ये लोग ने डीलर ने पता नहीं क्यों फ्रंट टायर नया डाला था, रेयर टायर जुना ही था. सो हमेशा अनइवन वेयर एंड टायर रहा है. सो मैंने फ्रंट टायर अभी तक एक बार चेंज किया है और रेयर टायर भी एक बार चेंज किया है.
सो टायर का कॉस्ट रफली 10,000 जोड़ लो। बाकी आई हैव अ लिस्ट ऑफ कितना खर्चा किया है मैंने इस पर, मैं गूगल शीट्स पे एक बना के रखता हूँ, सो इट helps me in keeping track of these sort of things. I urge all of you to make a Google sheet where you'll write the date, मतलब कौन से डेट पे काम हुआ, कौन सी बाइक पे काम हुआ, क्योंकि मेरे पास 2 बाइक है तो मैंने बाइक का भी एक सेक्शन ऐड किया है, कितने किलोमीटर्स पे वो काम हुआ, क्या काम हुआ, मेंटेनेंस क्या था, और फिर उसका कॉस्ट कितना था. सो दिस विल हेल्प यू टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ लॉन्ग योर पार्ट्स आर लास्टिंग एंड हाउ मच यू स्पेंट ऑन द बाइक ओवर द ईयर्स. ये मैंने रीबिल्ड के बाद शुरू किया था, सो लेट मी जस्ट गो थ्रू इट एंड सी इफ देयर इज एनीथिंग आई मिस्ड. हाँ, इसका रेयर व्हील का बेयरिंग एक बार चेंज किया था विच वाज फॉर $300. महाबलेश्वर में मैं जब गिर गया था बाइक से, वो बस वाले माता जब ठोका था मेरे को, तभी लेफ्ट वाला मेरा टूट गया था. So this was for $1,000. Oh, and I've also changed the entire clutch assembly, the clutch bucket and the clutch plate. So that was for $5,000. आगे का axle भी change किया है. I've changed both the clip-ons क्योंकि थोड़ा थोड़ा bend था. The clip-on is for $350 each. So हाँ यार, काफ़ी लंबी लिस्ट थी. But the thing is, I've ridden this bike a lot as well. Long distance चला है, short distance चला है, ट्रैक पे चला है, इसको अच्छे से मैंने यूज़ किया है. और इसमें अगर आप देखोगे ना तो मेजॉरिटी चीज़ें मेंटेनेंस वाली चीज़ें थी. वो ऐसी चीज़ें नहीं थी कि वो कोई और बाइक में नहीं होती. नहीं, वो सब बाइक में होता है. टायर्स, चेन स्प्रॉकेट, क्लच, all these sort of things, they're just part of the maintenance. So I had bought this bike for 1.5 lakhs and in the last 2 years I've spent another 1.3-1.4 lakhs on it. ये BS4 वाली जब नहीं आती थी तभी आई थिंक 3 लाख की थी, तो मैंने समझ लो उतना ही नए बाइक जितना ही खर्चा कर दिया. बट ओवर टाइम नंबर 1 एंड नंबर 2 मैंने भाई 19,000 किलोमीटर भी चलाया, ठीक है, तो वो उसकी वजह से भी वो कॉस्ट एड अप हो गया. यहाँ पे मेरी GoPro की बैटरी खत्म हो गई. काफी खर्चा करवाया इस बेबी ने, लेकिन जब ये चलती है तब इतना मजा आता है कि वो खर्चा वर्थ इट लगता है. दिस वाज जस्ट टू गिव यू गाइज अ रफ आइडिया ऑफ व्हाट विल हैपन इफ यू बाय अ यूज्ड 390, मतलब व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू बाय अ यूज्ड 390. सो एनीवेज, थैंक्स a lot for watching this one till here. I will see you guys in the next one. Bye bye. Of course, not doing the speed limit. Why the fuck would I do the speed limit on a super bike? यारे वाइब खराब कर रहा है. I fucking hate stray dogs. I hate stray dogs. मेरे पास मत आ. GoPro में बैटरी नहीं है लाला, जा तू. ठीक है, तो रुक फिर इधर ही, मैं ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ.